Hi, friends. Very warm welcome to all of you to today's session. Today's session is going to be on ratio and proportion. So today is the third chapter of ratio and proportion. And if you are very new to this particular channel, then I would advise that please have a look at chapter 1 and chapter 2, and then come back to chapter 3 of ratio and proportion. So this particular channel is it has been executed because I want to help people who are writing competitive exam crack competitive exams and build their foundations. So it does not matter which competitive exams you're writing; they put you through a test, be it anything, you need to build your foundation. And this particular channel has been designed so that it helps you build your foundation to crack any competitive exams for that matter. So let's get started. So today's session is, as I told you, ratio and proportion, the third chapter. So what I'll do is, friends, I'll just share the screen so that we can have a look at the questions and then start with today's session. So as you can see, my friend, in today's session, I have given you two questions. So you have, if you have been attending these sessions, you already know how to go about it. What you have to do is you have to have a look at these questions, pause the video, solve it, then come back and then have a look at the solutions, right? While I'll be discussing the solutions, I'll also be taking you through the different concepts that are required to solve these particular questions. So let's have a look at the very first question. The first question says, find the value of, you have to find the value of not x plus a divided by x minus a plus x plus b divided by x minus b if the value of x has been given to be 2ab plus 2ab divided by a plus b. Now, a very common approach could be that you simply replace the x with 2ab divided by a plus b where the question has been given. You can very well do that. Now, if you do that, you'll end up with, again, the number of calculation that you'll have to do would be a lot. So you can very well proceed with that. You still would get the answer. The chances of mistakes will be higher because the number of calculation will be more. So before I tell you how exactly we need to solve this question, I'd like to take you through a particular concept. I'm sure if you have been studying ratio and proportion, you might have heard these two words, componendo and dividendo, right? So what is componendo and dividendo? Let's have a look and let's see if we, if they have any practical use while solving questions for your exams. Now, let's say if you have a particular ratio, and let's say the ratio is, let's say, x by y, and this particular ratio has been given to be equal to, let's say, p by q. Okay. Now, can I say if this is a ratio that has been given, so can I say that x by y plus 1 should also be equal to p by q plus 1, correct? So from here, what do I get? So I get over here, if you solve this, you get x plus y divided by y should be equal to p plus q divided by q. तो इससे हमें क्या पता चलता है? आपका जो डिनोमिनेटर है, सपोज यू हैव दिस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर इज y, ओके, तो ये डिनोमिनेटर अगर आप न्यूमरेटर में ऐड कर दोगे, दैट इज x प्लस वाई, आपको यहाँ पर भी इस q को यहाँ पर ऐड कर देना पड़ेगा, दैट इज p प्लस q. तो इसका मतलब अगर ये बीच के स्टेप को हम ओमिट भी कर देते हैं, ये जो बीच का जो स्टेप है, सपोज ये बीच के स्टेप को हम ओमिट कर देते हैं टोटली, इन दैट केस आप ये बोल सकते हो दैट इफ x बाई वाई इज इक्वल टू p बाई q, देन x प्लस वाई बाई वाई शुड बी इक्वल टू p प्लस q बाई q. इसी चीज को अदरवाइज हम लोग बोलते हैं एज कॉम्पोनेंडो, राइट? सिमिलरली अगर आप यहां पर +1 नहीं करके अगर -1 करते, अगर आप -1 करते, तो यहां पर भी p प्लस क्यू के बाद आपको क्या करना पड़ता, एक -1 करना पड़ता. तो इन दैट केस व्हाट वुड यू हैव गॉट? यू वुड हैव गॉट x माइनस वाई बाय y इज इक्वल टू p माइनस क्यू बाय क्यू. इस चीज को अदरवाइज हम लोग बोलते हैं एज डिविडेंडो, राइट? सो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक पहले मैंने यहां पर आपको कॉम्पोनेंडो बताया, यहां पर मैंने आपको डिविडेंडो बताया. तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो व्हाट यू कैन सी इज दैट यू गेट टू डिफरेंट इक्वेशंस, राइट? तो अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, मींस दिस एंटायर इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस एंटायर इक्वेशन, सो x प्लस वाई बाय वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई बाय वाई, तो क्या हो जाएगा? वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यू विल लैंड अप विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज, यू विल से दैट x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई. इसके भी नीचे डिनोमिनेटर में y था, इसके भी डिनोमिनेटर में y था, तो y y कैंसिल हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू p प्लस क्यू बाय p माइनस क्यू. सो ये हमें कहां से मिला? जब हम लोग दोनों यूज किए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. इसका मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूं दैट इफ x बाय वाई इज इक्वल टू p बाय q, देन बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम यहां पर बोल सकते हैं दैट x प्लस वाई बाय x माइनस वाई विल बी इक्वल टू p प्लस क्यू बाय p माइनस क्यू.
राइट। बाय कॉम्पोनेंट आप क्या बोल सकते हो, सिर्फ बाय कॉम्पोनेंट आप क्या बोल सकते हो ना, अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दोगे या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दोगे, तो सेकंड रेशियो के साथ भी आपको वही करना पड़ेगा, राइट। इट डज नॉट मैटर, आप न्यूमरेटर को भी ऐड कर सकते हो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को भी आप ऐड कर सकते हो न्यूमरेटर में, लेकिन आपको आपने फर्स्ट रेशियो के साथ जो किया है, सेकंड रेशियो के साथ आपको वही करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट एडिशन। डिविडेंडो आप सब कर सकते हो, राइट। सो और दोनों अगर यूज करोगे, दिस इज व्हाट यू गेट, एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स पी प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू। करेक्ट। तो यहां पर अगर आप देखोगे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट हैज बीन गिवन, एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स का वैल्यू दिया गया है 2ab डिवाइडेड बाई प्लस बी। मुझे क्या निकालना है? अच्छा, बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, अगर आप यहां पर देखोगे फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है जब भी लोग कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करते हैं, राइट। सो व्हाट दे डू इज दे से ओके चलो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो बाय कंपोनेंट और डिविडेंड एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। ये गलत है। मान लीजिए ये वाला जो रेशियो है, लेट्स से दिस इज K1, तो आपका जो ये नीचे वाला जो रेशियो होगा, दिस विल बी अ न्यू रेशियो Q2 राइट। तो ये दोनों रेशियो सेम नहीं है, एक्स बाई वाई अलग रेशियो है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई वो अलग रेशियो है, ये दो अलग रेशियो है। लेकिन आपको पता क्या चलता है दैट एक्स बाई वाई अगर इज इक्वल टू पी बाई क्यू, देन राइट एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई शुड बी इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू, गॉट इट राइट। अच्छा, तो अगर मुझे यहां पर अगर देखोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बताया गया है, एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, मुझे ये निकालना है। इसको निकालने के लिए कैन आई से आई नीड एक्स बाई ए। अगर मेरे पास एक्स बाई ए मुझे पता होगा तो मैं एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस से निकाल सकता हूं, राइट। x plus a by x minus a is not going to be equal to x by a, please understand that। लेकिन अगर मैं x by a मेरे पास है, then by applying component and dividend I can find out the value of x plus a by x minus a। तो क्लियरली अगर आप देखोगे फ्रॉम दिस, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है यहाँ पर, क्या पता चला है मुझे, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो अगर मैं यहाँ पर a को डिवाइड कर दूं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ x बाई a, करेक्ट। सो व्हाट डू आई लैंड अप हियर, लेट्स फिगर आउट। सो आई गेट x बाई a क्या होता है, इज इक्वल टू 2b, बिकॉज वहां से a निकल गया और नीचे क्या है a प्लस बी। तो मुझे x बाई ए का वैल्यू पता चल गया। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे व्हाट विल बी द वैल्यू, यहां पर मुझे क्या चाहिए, x प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। तो उसके लिए मैं लेट्स फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई बी। व्हाट इज x बाई बी, x बाई बी इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय a प्लस बी, राइट। तो आप मुझे बताओ यहां से अगर x बाई a इज इक्वल टू दिस दैट इज 2b बाई a प्लस बी, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, इट विल बी दूसरी तरफ का जो है 2b प्लस ए प्लस बी, 2b माइनस ए प्लस बी, राइट। सो लेट्स फिगर आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x बाय कॉम्पोनेंट वन डिविडेंडो, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी इक्वल टू 2b प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2b माइनस ए प्लस बी, राइट। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई बी, एक्स बाई बी का वैल्यू है 2a बाय ए प्लस बी। सो अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, देन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय x माइनस बी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू, अगेन जो न्यूमरेटर है दैट इज 2a प्लस, डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस बी, डिवाइडेड बाय वी कैन से दिस इज 2a माइनस a प्लस बी, गॉट इट। तो तो यहां पर अगर आप देखोगे x प्लस से बाई एक्स माइनस से, यहां पर मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है, इफ आई सॉल्व फॉर दिस वन, इसको ये दो अलग अलग चीजें, इन दोनों को फिर अल्टीमेटली मुझे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द वैल्यू आई हैव टू फाइंड आउट, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा a प्लस 3b डिवाइडेड बाय, राइट। तो यहां पर व्हाट डू आई गेट ओवर हियर, आई गेट b माइनस ए, बी माइनस ए, राइट। और यहां पर अगर आप देखोगे दिस दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो है, इसका वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे, 3a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अच्छा, आप देखो एक जगह में आपको डिनोमिनेटर मिला है बी माइनस है, दूसरी जगह में आपको डिनोमिनेटर मिला है ए माइनस बी। तो अगर मैं दोनों को ए माइनस बी करना चाहूं, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर दोनों का साइन चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको प्लस से करना चाहता हूँ और इसको माइनस भी करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू, कैन आई से दिस इज, अगर मैं इसको एंटायर चीज को नेगेटिव कर दूं, सो दिस बिकम्स ए प्लस 3b डिवाइडेड बाय ये जो b माइनस है, आई कैन सिंपली मेक इट ए माइनस बी, राइट। अगर मैं इन दोनों का साइन चेंज कर देता हूँ, मीन्स मैं इन दोनों से नेगेटिव निकाल लेता हूँ एज अ कॉमन, राइट। तो ये प्लस था, प्लस से अगर आप निकाल दे रहे हो नेगेटिव, तो इन दैट केस बी को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप देखोगे ये ब्रैकेट जब मैं खोल देता हूँ, ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस ए एंड देन इट इज गोइंग टू बिकम प्लस बी, राइट। तो दिस टू आर एग्जैक्टली द सेम। नाउ आपको मैंने क्यों किया, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर सेम करना था, तो दैट मेरा एडिशन ईजी हो जाए, करेक्ट। मेरा एडिशन ईजी करने के लिए इसको मैंने किया था। अगर मैं अभी इन दोनों को ऐड कर दूं, इफ आई ऐड दीज, ओके, सो मुझे इन दोनों को ऐड करने से मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। सो बाय एडिशन ऑफ दिस वन, दैट दिस, ये जो वैल्यू था जो हमने निकाला, एंड दिस वन, इसका जो आंसर मैंने निकाला, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द आंसर, सो हमारा जो आंसर होगा, आंसर शुड बी इक्वल टू यू कैन गेट
3a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी माइनस ऑफ यहां पर जो दिया गया है दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज ए प्लस 3b डिवाइडेड बाय अगेन एंड ए माइनस बी। ऑब्वियसली दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो इन दैट केस मैं कॉमन ले जाऊंगा एज ए माइनस बी। तो यहां पर अगर आप इनको सॉल्व करोगे दिस शुड लैंड अप विथ 3a माइनस 3a माइनस ए दैट इज इक्वल टू 2a एंड b प्लस 3b यहां पर माइनस है तो माइनस 3b, सो दिस वन इज गोइंग टू बिकम माइनस 2b। इन दोनों से मैं अगर 2 कॉमन ले जाता हूं सो व्हाट डू आई लैंड अप हियर, 2 कॉमन ले जाने से यू विल हैव a माइनस बी इन द न्यूमरेटर एंड नीचे तो आपको a माइनस बी है, सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स अगर आप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज डिवाइड ₹12540 अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 3/7 ऑफ बी प्लस सी शेयर, राइट। तो अगर मान लीजिए यहां पर ए है, सो मान लीजिए यहां पर ए है एंड लेट्स से दिस इज सी एंड दिस इज बी। नाउ मैं ए सी बी इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे इजियर हो जाए। तो ए को अगर आपको मिल रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, ए गेट्स 3/7 ऑफ बी प्लस सी शेयर, इसका मतलब इसको अगर 3 पार्ट्स मिल रहा है तो इन दोनों को मिला के सी प्लस बी दोनों को मिला के मिल रहा है कितना पार्ट्स, 7 पार्ट्स। एंड क्वेश्चन में ये भी बोला गया है दैट बी गेट्स 2/9 ऑफ ए प्लस सी शेयर, तो इसका मतलब बी को अगर 2 पार्ट्स मिल रहा है तो ए और सी दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, राइट, ए और सी दोनों को मिला के कितना मिल रहा है, टोटल इज 9 पार्ट्स। तो आप देखो ए को अगर 3 पार्ट्स मिल रहा है, बी और सी को 7 पार्ट्स मिल रहा है, इन दैट केस कैन आई से द टोटल पार्ट्स, टोटल जो सबसे टोटल है तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर अगर ए और सी को 9 मिला है और बी को 2 मिला है, कैन आई से द टोटल इज अदरवाइज 11 पार्ट्स, करेक्ट। नाउ आपको पता है जब आपको दो अलग अलग पार्ट्स मिल रहा है, एक में आपको 10 पार्ट्स मिला है, एक में 11 पार्ट्स मिला है, तो व्हाट विल बी द सेफेस्ट वे, व्हाट आई डू इज आई सिंपली मल्टीप्लाई 110। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर मैं यहाँ पर 110 किया हूँ, व्हाट हैव आई डन, मैं 10 के साथ 11 को मल्टीप्लाई किया हूँ। तो अगर आप 10 के साथ 11 मल्टीप्लाई किए हो, इसका मतलब 10 के साथ आप जो मल्टीप्लाई करोगे आपको 7 और 3 के साथ वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट सब एक ही रेशियो में आ जाए। एंड अगर इस 11 के साथ आपने 10 मल्टीप्लाई किया, बिकॉज आप यहाँ पर 110 लिखे हो तो 11 के साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ आपको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 के साथ भी आपको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। सो नाउ क्लियरली आपको तीनों का रेशियो पूरा क्लियरली दिखेगा। इसका मतलब ए कितना है, 3 into 11 कितना हो जाता है, 33। बी अगर आप देखोगे बी का वैल्यू अभी हमें पता नहीं, बिकॉज यहाँ पर बी और सी है और यहाँ पर ए और सी एक साथ लिखा गया है, लेकिन सी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। सी कितना है, तो सी इज ओवर हियर, अगर आप देखोगे सी इज व्हाट, आई एम सो सॉरी, ओके। सो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर क्लियरली आपको ए और ए बी सी का रेशियो जो है आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। कैसे, अगर आप दिस पर्टिकुलर वैल्यू को देखोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 into 11 दैट इज इक्वल टू 33 पार्ट्स। अच्छा सी स्टिल नॉट क्लियर बिकॉज यहाँ पर सी भी है और यहाँ पर ए सी है, लेकिन बी तो क्लियर है। बी कितना है, 2 into 10 कितना होता है, 20 पार्ट्स। तो नाउ ये 33 हुआ, ये 20 हुआ और टोटल कितना है, 110 है। तो 110 से अगर आप इन दोनों को निकाल दोगे दैट इज 20 पार्ट्स और 33 पार्ट्स, तो बचेगा कितना, वो सी का पार्ट दैट इज 57 पार्ट्स, राइट। तो अभी आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ यू नो द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए सी बी, ए 33 है, सी 57 है, बी इज 20, टोटल इज 110। तो अगर मुझे ए का शेयर निकालना होगा व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली डू ए का शेयर अगर मुझे निकालना है दैट इज 33 डिवाइडेड बाय टोटल इज 110 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट, क्वेश्चन में बोला गया था किस पैसे को डिवाइड करना है, 12540, राइट। तो ऑब्वियसली 0 0 कैंसिल हो जाता है, 33 11 को कैंसिल कर देता है इसको 3 में, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस शुड बी अदरवाइज इक्वल टू 2, कैरी फॉरवर्ड 1 दैट इज 6, कैरी फॉरवर्ड 1 दैट इज 7 एंड देन 3। तो 3762 इज द इज रुपीस में दैट द अमाउंट दैट ए गेट्स, राइट। तो देखिए अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो अगर डज नॉट मैटर, बी को भी पूछा जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। बी कितना होगा, 20 पार्ट्स ऑफ टोटल ऑफ 110 पार्ट्स। सी को अगर हमें निकालना है, सी को कितना मिला, 57 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 110 पार्ट्स ऑफ द अमाउंट दैट इज 12540, करेक्ट। नाउ दिस इज द वे टू डू अप्रोच दिस क्वेश्चन, जैसे हम लोग टैबुलर मेथड में डिस्कस किए थे। लेकिन आप जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेट हो गया हल्का सा, है ना, बिकॉज यहाँ पर बी प्लस सी का एक साथ छेड़ दिया गया था, उसको हमें छेड़ के उसको सॉल्व करना पड़ा। नाउ इसको अगर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड क्लियर होगा तो आप देखो आप कितनी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ए गेट्स इज इक्वल टू 3/7 ऑफ बी प्लस सी शेयर। तो इसका मतलब ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी
शुड बी इक्वल टू 3/7। देखिए हम कॉम्पोनेंटो में क्या डिस्कस किए थे, अगर न्यूमरेटर को आप इधर डिनोमिनेटर में ऐड कर दे रहे हो तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर में ऐड करोगे, अगर डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में ऐड कर दे रहे हो तो यहाँ पर भी आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करोगे। सिंपल, दैट इज व्हाट वी डिस्कस। सो बाय कॉम्पोनेंटो अगर मैं यहाँ पर ए को लेके ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 3 को लेके इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो बाय कॉम्पोनेंटो, राइट, सो हम लोग बोलते हैं दैट बाय कॉम्पोनेंडो हमें क्या मिलता है दोस्त, कॉम्पोनेंडो में हमें ये मिल जाता है दैट ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, मैं नहीं लिख के मैं लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी, राइट, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने ए को ऐड कर दिया इधर, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 करना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माने तीनों का शेयर, तीनों का शेयर कितना है 12540, सो आई कैन सिंपली से दैट ए डिवाइडेड बाय 12540 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो 10। सो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 12540, तो 0 0 कैंसिल हो गया। अगेन द सेम कैलकुलेशन अगर आप देखोगे, this should also amount to 3762 rupees. And that is how simple this is. So friends, the whole thing is that आपको एक ही डायरेक्शन में नहीं जाना, आपको सारे हथियार रेडी रखना है ताकि यू डोंट नो व्हाट इज अबाउट टू कम एंड आपको कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा चीज अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। एंड दैट इज वेयर योर फाउंडेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज नील एंड आई एम ओवर हियर टू हेल्प यू आउट अंडरस्टैंड एंड बिल्ड योर फाउंडेशन, सो दैट कभी भी आप कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन हो या फिर एनी अदर एरिया हो, जब आप फेस करो तो यू शुड नॉट हैव अ चैलेंज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फास्ट and accurately. The only mission, my friend, that I have is that aptitude should not be the reason why you fail to qualify in any of the competitive exam. Do subscribe to our channel, be a part of this particular group, right? If you want to learn it through YouTube, please attend these sessions. If you want personal attention, then please to come to a masterclass through the WhatsApp group, right? Over there, I'll take you through, you know, a one-on-one attention based classes. So friends, आप जिस तरीके से भी सीखो, does not matter, work on your foundations. I'll see you in the next class. Till then, take care and have a nice time. Thank you all of you.